So welcome. Today we'll be discussing about modern India. In modern India, we'll be discussing various themes. The number of questions are a bit more because in general the syllabus है सबसे बड़ा यहीं पर ही है. So we'll be taking various categories of questions. So let us start with the first one. The first one, it is about the comparison. It is about the learning which the British did from the ideas of Dupleix. So Dupleix was someone who was very much at the forefront of creating a political empire for the French. His role in the first Carnatic War and second Carnatic War till 1751, so that 1742 when he arrived till 1751, those roughly 10 years or a decade was something which was very important from the French point of view. However, by the time in 1754 when he came back and thereafter the defeat of the French in 1760, it closed the door with respect to their supremacy in India. However, the ideas of Dupleix, they kept on becoming inspiration for the British, and the idea of subsidiary alliance, which will be brought in by Lord Wellesley by the end of your 18th century. That idea was directly nothing but the idea of Dupleix. Let us try to understand. It was Dupleix who had first showed the way of intervening in dispute of interval and thereby acquiring political control over vast territory, a technique which was later perfected by the English East India Company. Elaborate. So the question says elaborate. It means you don't have to go against the theme of the question. Exactly same answer लिखना है. So the introduction is all right. Year mentioned कर दिया, timeline, and talked about his skill and masterly diplomacy. Then the student has talked about the first Carnatic War. First Carnatic War is important because in this, Anwaruddin had asked Dupleix to stop his war against the British, but he did not, and he even promised Anwaruddin that yes, please let me fight and I'll give you Madras, because he was able to defeat the British. But he did not surrender Madras. At that, the whole empire of the Nawab, eventually whatever kingdom he was having, it became upset with the ideas of Dupleix. An army was sent to defeat Dupleix, but Dupleix, under the eventual help from the Captain Paradise, they were able to defeat Anwaruddin and his army. And this was very important because in the first Carnatic War, even though the larger fight was between the English and the French, but in this, eventually we were able to understand about the inefficiencies of these native rulers, that they are not able to exercise sovereignty in their own areas. And this is something which is going to become a general feature of India's political life in 18th century. So this is the first part where he was able to fight against the enemy, against the wishes of the monarch itself. So that's something new. Second Carnatic War is the most important part of this question. Here you have to mention about which specific steps were taken by him. So here the student has written about the succession crisis which were there in Hyderabad as well as Carnatic. In Hyderabad, it was about Nasir Jung versus Muzaffar Jung, and in the case of Carnatic, it was Anwaruddin versus your Chanda Sahib. So Chanda Sahib and Muzaffar Jung, they came together along with Dupleix, defeated your Anwaruddin and in fact killed him in the Battle of Hambur in 1749, and thereafter he was able to get a very prominent place in the Carnatic region, and at the same time he was able to eventually station his famous officer Basi in the court of Hyderabad. So this is how if you see the whole idea of subsidiary alliance, where does it come from? वही जो provisions है वो सारे यहीं से निकल के आते हैं. Like number one, supporting your friends in the war. Okay, second, getting the specific rights, economic rights because of that. Third, having the system of resident. Here we see the Basi and the Hyderabad. This is nothing but, and he himself got the rights of the Subedar of the south of Krishna river. So all those things which he was able to do at this point of time, eventually all these things will become a part of the subsidiary alliance system later on. In fact, there was a policy of ring fence in which the British utilized their neighbors, for the sake of their own security. So that policy of ring fence to some extent can be seen in emerging from the ideas of Dupleix itself. So the student has written all of this, so this looks relatively good. The only one thing which is a bit missing कि उसको पूरे अच्छे तरीके से आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं किया स्टूडेंट ने यहाँ पे, ठीक है. बाकी तो इन्होंने ठीक से कवर किया है. सेकंड कर्नाटिक वॉर भी ठीक से कवर किया है. पहले वाले पार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, परफेक्शन वाले पार्ट पे थोड़ा कम फोकस किया. तो व्हेन यू विल बी राइटिंग दिस क्वेश्चन, तो आप कोशिश करना कि सेकंड वाले पार्ट को भी कनेक्ट करो. द सेम आइडिया ऑफ political alliance, it was used by Robert Clive in the case of your Battle of Plassey, thereafter the Battle of Buxar, okay, and later on the whole idea Diwani rights इन्होंने वहाँ से लिया from the emperor in 1765, the whole ideas, ठीक है. And later on the system of subsidiary alliance which was established by Wellesley, it was completely on the basis of the idea of
Duplex. And that's why G.B. Mallison says that Duplex was the first political visionary. He was the first person to understand that an empire can be created in India. So that is something. The student has also used historiography. Okay, so if we use these kinds of steps, even though the directive is very simple in this question, तो आप इसको आराम से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं. Hi, so welcome to Prep Career. Today I'm going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा रोड है. आप हम आराम से 3-4 महीने ऑप्शनल को अच्छे से अभी डेडिकेट कर सकते हैं, राइट. सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, उसको अच्छे से यूटिलाइज किस तरीके से करें. दिस इज़ वेयर डॉन कम्स इन. डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पर रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए. बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते. कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते. देयर इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेल्युएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर. इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th. ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे. नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे. मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि शेड्यूल में क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो, ठीक है. एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स. दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो. सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट 4 months, है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. व्हाट शुड बी दी अप्रोच, तो अप्रोच बहुत सिंपल है. अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ, एंड देन ऑन डेली बेसिस यू विल राइट फ्यू आंसर्स. हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे. एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो, उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है. हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका है अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर 1 day. जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा रफली, कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो. और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस, ठीक है. तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है. फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें, राइट. दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है. जो पढ़ चुके हैं, एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं, हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंडआउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें. दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग. प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे. देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना. यू विल गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल. देन ऑल्सो द कवरेज गोइंग टू बी मैसिव. पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे. दिस इज रफली द UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, ठीक है. ये सारी चीज़ें इसमें होंगी. डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे. 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा. 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेल्युएट होकर कॉपीज़ मिल जाए. सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑलराइट. एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट. एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर. एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं, जिसमें हम बहुत बच्चों को हिस्टोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है. सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं. एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग. अब देखो हमने क्या किया कि रफली 21 दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 days ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है. इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग. बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं. तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए. वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए. बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं GS में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए. देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4. तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा
वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ अगस्त आपका एंशंट फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है, और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो एक दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स। ओके, सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर। तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाएगा, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रेकमेंड आप फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए। ओके, उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन्ड, कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस, एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end or by the beginning of November itself, you will be able to finish off this batch. Alright, so all the very best. Thank you so much. इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।